अमेरिका में एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। ये दौर कैसा होता है ये तो वक्त फैसला करेगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब हलफबरदारी से काबिल वाशिंगटन में हामियों से खिताब। कहा गजा जंग बंदी उनकी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। ये मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। बोले अफगानिस्तान से अपने फौजी साजो सामान की वापसी चाहते हैं। टिकटॉक को बचाने की ज़रूरत है। अमेरिका को टिकटॉक की निस्फ मिल्कियत हासिल करनी चाहिए। टिकटॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन खरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। ये भी कहा कि हम सरहद से दरअंदाजी को रोकेंगे। इफ्तिताही खिताब में सरहदी हिफाजती इक़दाम का खाका पेश करेंगे। फ़ौज को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म देंगे। फ़ौज में मौजूद कमज़ोरियों को ख़त्म करेंगे। ट्रंप का साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल का केस का रिकॉर्ड जारी करने का वादा। कहा रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कत्ल से मुतालिक रिकॉर्ड भी जारी करेंगे। अवामी दिलचस्पी के हामिल दीगर दस्तावेज़ात भी जारी की जाएंगी। ट्रंप ने मर्दों को ख़वातीन के स्पोर्ट्स से बाहर करने का ऐलान कर दिया। कहा कि ये काम कल ही करेंगे। ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को ख़वातीन के खेलों में हिस्सा लेने से रोक देंगे। उन्होंने कहा कि तारीख़ी रफ्तार और ताकत के साथ काम करेंगे। अमेरिका को दरपेश बहरान को हल करेंगे और बाइडन के दिए गए तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फौरी मनसूख कर दिए जाएंगे। Perhaps most beautiful of all, this week we achieved an epic ceasefire agreement as a first step toward lasting peace in the Middle East. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. That was some victory. Was that the greatest? I don't even know which was greater, 2016 or this one. I think this one. But I'm glad to report that the first hostages have just been released. Thank you, Steve. What a job. Our incoming administration has achieved all of this in the Middle East in less than 3 months without being president. We've achieved more without being president than they've achieved in 4 years with being president. Do you know that we pay billions of dollars a year? Do you know this? Does anyone know this? To Afghanistan? Do you know that? And I say, if we're going to pay billions of dollars a year, tell them we're not going to give them the money unless they give back our military equipment that these poor, stupid people allowed for them to have. So we'll give them a couple of bucks. We want the military equipment back. As of today, TikTok is back. Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it. Let the United States of America own 50% of TikTok. I'm approving on behalf of the United States. So they'll have a partner, the United States, and they'll have a lot of bidders, and the United States will do what we call a joint venture. And there's no risk. We're not putting up any money. All we're doing is giving them the approval, without which they don't have anything. So I don't know. It sounds like that works. What do you think? Good? We have to set our country on the proper course. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire military. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमास की जानिब से 3 यरगमाली ख़वातीन की रिहाई के चंद घंटे बाद ही इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। गजा में इसराइल हमास जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। हमास का कहना है कि कैदियों का अगला तबादला हफ्ते 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। इसराइली फ़ौज ने हमास की 20 बटालियंस ख़त्म की, लेकिन वो तबाह नहीं हो सकी। इसराइली अखबारात और मीडिया के तबसरे सामने आ रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास गजा पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। हमास गजा में सुरंगों से निकलकर दोबारा कंट्रोल जाहिर करती दिखाई दे रही है। हमास की पुलिस दोबारा मुनज़्ज़म होती गजा का इंतज़ाम संभालती नजर आ रही है। फ़लस्तीनी मीडिया जंगबंदी को हमास की फतह के तौर पर पेश कर रहा है।
हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि हम तो गज़ा जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करने के लिए पुरअज़्म हैं। सालिसकार इसराइल को भी मुआहदे का एहतराम करने का पाबंद बनाएं। जंगबंदी मुआहदे की कामयाबी इसराइली अमल और पर ही मुनहसर होगी। इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पूरे अमल को ख़तरे में डाल सकती है। मज़ीद कहा कि गज़ा पर कब्ज़ा तमाम बुराइयों की जड़ है और हम इस कब्ज़े को ख़त्म कराएंगे। गज़ा पर कब्ज़ा बरकरार रखने की तमाम कोशिशों का ताकत से मुकाबला करेंगे। और कराची में साइट एरिया हारून में घर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक जबकि 2 ज़ख्मी हो गए। चाय वक़ुआ से तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, इस वक्त हम साइट एरिया हारूनाबाद में वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर एक घर में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इस घर में 8 भाई एक साथ रहते थे। पुलिस का कहना है कि नामालूम अफराद आए हैं और उन्होंने जो है घर में आते ही फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 4 भाई शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें से 2 जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, जिनकी शनाख्त असदुल्ला और समीउल्लाह के नाम से हुई है। जबकि ज़ख्मी भाइयों की शनाख्त अमीर अब्दुल्ला और इकरामुल्लाह के नाम से हुई है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि अहले खाना और इलाका मकीनों से पता चला है कि जाँ बहक और ज़ख्मी अफराद के बच्चों का गुज़श्ता रोज़ कुछ इलाके में कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। मौके पर जो है वो सुलह सफाई करा दी गई थी, लेकिन जो है वो लड़के थे, उनका ये कहना था कि वो दोबारा आएंगे और अपना बदला लेंगे। अभी तक पुलिस का कहना है कि इस बारे में जो है वो इसकी तस्दीक नहीं की जाती जब तक जो है इस बारे में शवाहिद ना मिलें। पुलिस इस वाक़े की जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है और अहले इलाका से भी जो है वो पूछताछ की जा रही है। अच्छी खबर गवादर से। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से ऑपरेशनल किया जा रहा है। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज करने से मुताल्लिक़ अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। और जैसे कि हमने आपको बताया कि गवादर एयरपोर्ट आज से फ़ाल होने जा रहा है, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां भी सामने आ रही हैं। न्यू गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह आज हो रहा है और कराची से गवादर जाने वाली पहली फ़्लाइट अलबत्ता कुछ ताख़ीर का शिकार है। अफजल नदीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल बताइए क्या तफसीलात मिली हैं अभी तक? लगभग 50 अरब रुपए की मालियत से जो गवादर एयरपोर्ट तैयार हुआ है, उसका इफ्तिताह आज है, जो शेड्यूल का ऐलान किया गया। इसके साथ ही आज फ्लाइट रडार पे भी जो एयरपोर्ट की निशानदही कर दी गई है न्यू गवादर एयरपोर्ट के नाम से। पहली परवाज में कराची से जाना है जो PK 503 रवाना होगी। पहले जो टाइम दिया गया था इसका वो 9:15 बजे रवानगी का था। मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, ताहम परवाज की जो रवानगी है उसमें 45 मिनट की ताखीर की गई है। अब ये परवाज 10 बजे रवाना होगी। जो कराची से जब पहुंचेगी गवादर तो इसको वाटर सैल्यूट पेश किया जाएगा। इसी तरह गवादर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का इस्तकबाल करने के लिए जो शख्सियात होंगी उसमें ख्वाजा आसिफ हैं, वफाकी वजीर, इसके अलावा गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान के अलावा अहम दीगर शख्सियात भी वहाँ पर फ्लाइट का इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगी। बहुत शुक्रिया। अमन मुआहदे हुए लेकिन मसला हल न हो सका तो दूसरा रास्ता निकाला गया। कमिश्नर कोहाट का कहना है कि कुर्रम में ऑपरेशन मुकामी आबादी के खिलाफ नहीं, उन शरपसंदों के खिलाफ है जो मुकामी आबादी में घुस आए हैं। ऑपरेशन का मकसद आवाम को शरपसंदों से महफूज बनाना है। डीसी हंगू के मुताबिक आज सुबह से हंगू में TDPs कैंप कायम करना शुरू कर दें। उधर जिला हंगू के टल से पारा चिनार के मरकजी शाहरा मंदूरी के मकाम पर धरने के बायस आज भी बंद है। 3 माह से ज़ायद अरसे से रास्तों की बंदिश पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। कमिश्नर कोहाट मुतसिम बिल्ला शाह, DIG और आप कोहाट अब्बास मजीद ने हंगू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों फरीक़ैन की ख्वाहिश है कि इस मुआहदे पर अमल दरामद करें, लेकिन शरपसंदना से इस मुआहदे को सबूताज करना चाहते हैं। ज़िला खुर्रम सूरत हाल पर जरगा मेंबरान ने DC से लेकर सदर, वज़ीर आज़म, मामी चीफ, वज़ीर आला और गवर्नर समेत 14 जिम्मेदार हुक्काम के नाम खत लिखा है और कहा है कि आमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस न लिया गया तो जरगों और मुआहदों से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। उधर 3 माह के अरसे से ज़िला खुर्रम की सड़कों की बंदिश के बायस दुकानें वीरान और अशिया खुरनोश समेत दीगर अद्वियात और सामान की किल्लत पैदा हो गई है।
और ज़िला खैबर का दूर अफ्तादा पसमानदा इलाका बाजार ज़ख़खेल 75,000 अफराद पर मुश्तमिल है जो माजी में दहशतगर्दी का शिकार रहा। बाजार ज़ख़खेल की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत ने पहली बार 4 अरब 52 करोड़ रुपए की ख़ती रकम मंजूर की है। ज़िला खैबर का दूर अफ्तादा पसमानदा इलाका बाजार ज़ख़खेल 75,000 अफराद पर मुश्तमिल है जो माजी में दहशतगर्दी का शिकार रहा। बाजार ज़ख़खेल की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत ने पहली बार 4 अरब 52 करोड़ रुपए की खती रकम मंजूर की है। बिजली मलक टोला बोदीगी वही वसड़ी ले लास रसला कर पे काला दुमरा न खुश वाले दिल का अपना रोड खुश हो जी। 2026 में मुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबे को बाजार ज़ख़खेल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम देकर इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। ख़ुसूसी तौर पे इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ की जो स्कीम्स हैं वो इस बाजार ज़ख़खेल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उनकी वाटर सप्लाई स्कीम्स, ट्यूब वेल्स, उनकी सोलराइजेशन का भी प्रोसेस इसमें शामिल। नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है जो कि बाजार ज़ख़खेल एरिया को तीरा, लंडी कोतल और जमरोद मेन से कनेक्ट करेगा। कबाइलियों का कहना है कि तरक्याती मंसूबा मुकम्मल होने पर दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासर होने वाले बाजार ज़ख़खेल के मुस्बत असरात दीगर इलाकों पर भी मुरतब होंगे। काजी फजलुल्लाह, GU न्यूज़, ज़िला खैबर। ज़िला बदीन में मौसम की शिद्दत में इजाफे और यखबस्ता हवाएं चलने से शहरी मौसमी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इजाज़ ज़ई मज़ीद बता रहे हैं। देखिए, ज़िला बदीन इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है और यखबस्ता हवाएं चलने से बच्चे और बुजुर्ग जो हैं इससे मुतासिर हो रहे हैं और उनमें जो है मौसमी अमराज जन्म ले रहे हैं और बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो अस्पतालों में जो फ्लू से मुतासरा लाए जा रहे हैं। मौसम की शिद्दत की वजह से जो इस वक्त बहुत ज्यादा जो है नज़ला है, जुकाम है, गले के अमराज हैं और उसके अलावा जो है छाती का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है और जो है प्रॉपर जो लोग जो हॉस्पिटल तक नहीं आ रहे हैं वो जो है ज्यादा क्रिटिकल होकर नमूनिया की तरफ जा रहे हैं। बड़े और बुजुर्ग और बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। मौसम की शिद्दत जो है रूटीन से हटकर है इस सीजन में। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, बाहर अगर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े और सरों को ढांप कर बाहर निकलें ताकि इस जो मौसमी अमराज है इससे खुद को महफूज रख सकें। जी। और जैकबाबाद और गिरदनवाह में सर्दियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, लेकिन अलानिया और गैर अलानिया लोड सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे जैकबाबाद से मुकेश रुपैता से। जी सर, मैं जैकबाबाद के DC चौक पर मौजूद हूँ। जैकबाबाद में दिन ब दिन सर्दियों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन सुई गैस की लोड शेडिंग, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सकी है। एलानिया लोड शेडिंग हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे जो है सुई गैस फराहम की जा रही है, लेकिन उसको 2 घंटे के दौरान भी लो प्रेशर होने की वजह से खाना भी पक नहीं पा रहा और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। शहरी इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं, आइए पूछते हैं यहाँ पर मौजूद शहरियों से। देखो, गैस का जो लोड शेडिंग है दौरानिया जो 2 घंटे कर रहे हैं वो 3 घंटा पहले चल रहा था, अभी उन्होंने 2 घंटा किया। अभी सर्दी भी ज्यादा है और LP जो एक महंगा है 350 रुपया किलो चल रहा है, लेकिन अभी गरीब की पहुंच से वो दूर है। जी, इस वक्त आपने यहाँ पर शहरियों के तासुरात सुने हुए, उनका ये कहना है कामिया की जानिब से जो गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है वो फौरी तौर पर खत्म की जाए और जो गैस की फराहमी 2 घंटे उसको 3 घंटे किया जाए ताकि शदीद सर्दी की मौसम में शहरियों को आसानी हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर ज़िला घोटकी में सर्दियों की सौगात स्पेशल गुड़ की तैयार करता भट्टियाँ सज गई हैं, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम का गुड़ तैयार किया जाता है। गुड़ किन मराहिल से गुजर कर तैयार होता है, बता रहे हैं घोटकी से नज़ीर अहमद। जी, मौसम सरमा के आगाज के साथ जहाँ मुल्क के दीगर हिस्सों में मुख्तलिफ सर्दी की सौगात स्पेशल तौर पर तैयार की जाती हैं, वहीं जिला घोटकी में गुड़ बनाने की भट्टियां भी कायम कर दी जाती हैं। कौमी शाहराह के करीब जो है गुड़ की भट्टियों के साथ साथ वो गाँव देहातों में भी गुड़ की भट्टियां कायम की जाती हैं। जबकि इस वक्त हम कौमी शाहराह के करीब एक गुड़ की भट्टी पर मौजूद हैं, जहाँ पर गुड़ की तैयारी का मरहला जो है वो जारी है। जहाँ पर कारीगर से पूछते हैं कि ये कितने अक़साम के गुड़ बनाते हैं और कहाँ कहाँ ये गुड़ जो है वो जो तोहफे के तौर पर भिजवाए जाते हैं। जी बताइएगा कि ये कितने अक़साम का आप गुड़ बनाते हैं, किस तरह तैयार होता है? ये ताज़ा फ्रेश गन्ने का जूस निकालते हैं कोल्हू से, फिर कढ़ाई में डाल के इसकी पेशियाँ बनाते और ड्राई फ्रूट भी डालते, इसमें देसी घी भी डालते और इसमें जो मावा भी डालते अच्छे तरीके से। पिछले साल से भी बहुत अभी ज़्यादा माशाल्लाह आर्डर है, काफ़ी बाहर से भी आर्डर आते, लाहौर से भी आते, सक्कर घोटकी से भी आते।
जी, यहाँ पर जो है गुड़ बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि यहाँ पर गुड़ की जो तैयारी है उसका जो मरहला है वो उसमें मुख्तलिफ अक़साम के ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं और ये मुल्क के दीगर शहरों में भी तोहफे के तौर पर भिजवाया जाता है। कौमी शाहराह के करीब गुड़ बनाने वाली भट्टियों से उठने वाली धीमी धीमी खुशबू कौमी शाहराह से गुजरने वाले मुसाफिरों को अपनी तरफ खींच लाती है। जी, मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी। मुल्तान के शहरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर काफ़ी खुश दिखाई दी है। सालिहा मलिक मजीद बता रही है। जी, मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैच, जिसका पहला जो टेस्ट मैच है उसका अख्ताम पसीर हो गया और बहुत ही अच्छा अख्ताम हुआ है। पाकिस्तान ने 127 रन से वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जहाँ पे शायकीन क्रिकेट जो है वो ख़ुद भी क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या व्यूज़ हैं। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान हमेशा से ही इस ट्रैक्स के ऊपर अच्छी बॉलिंग करता है। साजिद खान देखें, स्पिन उसने बहुत अच्छी की है, नुमान अली है, माशाल्लाह अच्छा विन है। पाकिस्तान मुल्तान के लिए भी बहुत अच्छा साइन है। हमें आगे भी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छा विन करेगी सेकंड उसमें टेस्ट मैच में। और साजिद अली ने और अनवर अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही एक अच्छा जो है ना विन किया पाकिस्तान ने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी जितने मैचेस वगैरह हैं उनमें भी जो है इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी पाकिस्तान। सेकंड मैच जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 25 से शुरू होगा मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और तमाम लोग जो हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्म करेगा और बहुत अच्छा जाएगा ये मैच। जी, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन शान मसूद का कहना था कि जीत होती है। हमारा अगला हदफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मजीद मैचेस में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है। जीत होती है, बट हम एक वो टीम है कि जो हम चाह रहे हैं कि हम आगे अपने आप को अगर बेस्ट बनाना चाहते हैं, हम किन किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बस हम जीत गए तो बस सब ठीक है। हमने काफ़ी चीज़ें नोट की और हमारा काम है उस पर काम करके अपने आप को और बेहतर करना कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अच्छा करें, टॉप की पोजीशंस में आएँ और जिधर हैं वहाँ ना हो। तो आपको अपने होम के सारे टेस्ट मैचेस जीतने, तो अगर उसमें किसी शोबे ने कुर्बानी भी देनी हो, जैसे बैट्समैनों का भी उस तरीके से रोल नहीं है, फास्ट बॉलर्स का भी उस तरीके से अभी फ़िलहाल रोल नहीं है। जी, कुछ ऑपोजिशंस आएंगी, कुछ टीम्स आएंगी, जब हमें लगेगा कि यहाँ हमें उस टाइप की विकेट्स बन सकती हैं, मिल सकती हैं, तो फास्ट बॉलर्स को भी वैसे ही आउट करने का मौका मिलेगा जैसे स्पिनर्स को इस वक्त मिल रहा है। तो ये एक टीम गेम है और इसमें आपको एक चीज़ बेहतर करने के लिए दूसरे शोबों को कुर्बानियां देनी होती हैं और उसमें हमें वो चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए। और लाहौर रेस क्लब में लेडीज़ डे मनाया गया। 3 कप रेसेस में सिर्फ घोड़ियां ही दौड़ी। अनारकली कप दिलबर ने जीता। 1000 गनीस में किस्वा प्रिंसेस और विक्टोरिया कप में सुसाइड ब्लॉन्ड फाते रहीं। लाहौर रेस क्लब में एक नई तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान में पहली मरतबा लेडीज डे मनाया गया और 3 कप रेसेस का एहतमाम किया गया, जिसमें सिर्फ घोड़ियां ही दौड़ती दिखाई दी। पाकिस्तान में ये सॉफ्ट इमेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट के मौके नहीं हैं लोगों के पास। इन अ प्लेस लाइक रेस क्लब जैसी जगह में जहाँ पे फिली रेसेस हो रही हैं और उसको आप लेडीज़ कप के नाम से देते हैं। अब हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि अगले साल ज़्यादा लेडीज़ भी यहाँ रिप्रेजेंट हों। रेसेस देखने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इनमें कई खवातीन रेसेस में हिस्सा लेने वाली घोड़ियों की मालिक भी थी। खवातीन ने विमेन एम्पावरमेंट और पाकिस्तान के मस्बत इमेज के लिए इस इवेंट को शानदार करार दिया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि कितना टर्न आउट आया, कितनी खवातीन यहाँ पे आई हैं एंड वी हैड सच अ नाइस टाइम। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हियर कि लेडीज़ डे यहाँ पे हमारा रेस क्लब में हो रहा है एंड आई थिंक ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। आई हैव नेवर सीन सच एन इवेंट बिफोर हियर। बहुत सीखा हमने रेसेस को देखकर। मेरा फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा और कन्वीनियंट एक्सपीरियंस था। इतने अरसे तक एक इतनी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रही है, तो माशाल्लाह से अब ये बहुत अच्छा स्टेप है अवेयरनेस की तरफ। I absolutely love it. I want to involve and include more women into this sport. अनारकली कप में दिलबर 1000 गिनीज ऑफ पाकिस्तान में कस्वा प्रिंसेस, जबकि विक्टोरिया कप में सुइसाइड ब्लोन ने कामयाबी हासिल की। विक्टोरिया कप में इंग्लैंड की 7 घोड़ियों ने हिस्सा लिया। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। कराची में इंडस अस्पताल के ज़ेर एहतमाम चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया।
इवेंट का इनेकाद कराची गोल्फ क्लब में किया गया, जहां तकरीबन 150 गोल्फर्स ने टीमों की सूरत में अपनी सलाहियतें आजमाई। इस मौके पर अस्पताल के सदर डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने बताया कि उनका इदारा पिछले 17 बरस से पूरे पाकिस्तान में खिदमात अंजाम दे रहा है। छोटा सा एक पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका है। ये वाला जो टूर्नामेंट है ये 10वां है और ये तारीखी भी है, क्योंकि जो ख्वाब आपने देखा था कि बड़ा हॉस्पिटल नया बन जाए, तो उसकी इमरजेंसी और OPD में हम लोग मूव कर गए हैं, और जिसके लिए जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह का करें वो कम है। इवन नेट और ग्रॉस 2 कैटेगरीज में खेला गया। इसमें नेट में 53.9 पॉइंट के साथ CDC की टीम ने फतह हासिल की। ग्रॉस में M मन्नान की टीम कामयाब रही, जिसने 60 पॉइंट्स स्कोर किए। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर विनर और रनर्स अप टीमों और इनफरादी तौर पर उम्दा कारकर्दगी पेश करने वाले गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ मंजर नकवी, जियो न्यूज़, कराची। चेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के इश्तराक से लाहौर ओपन एंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। इवेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी पंजाब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। चेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के इश्तराक से लाहौर ओपन एंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के मुकाबलों का एहतमाम यूनिवर्सिटी कैंपस में किया गया। अंडर 12 और अंडर 14 के अलावा दीगर उम्र के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। जनरल सेक्रेटरी चेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब राजा गौहर इकबाल का कहना था कि इन मुकाबलों का मकसद शतरंज के खेल को फरोग देना, नौजवानों के जहनी मेयार को बेहतर बनाना और उनमें सोचने, समझने और फैसला साजी की सलाहियत को बढ़ाना है। और अब आपको बताएं कि लाहौर के इलाके बादामी बाग में गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली पुलिस से मुतासर 8 ख़वातीन पुरअज़्म हैं, कुछ कर दिखाने की सलाहियत रखती हैं। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये मर्द तो नहीं लेकिन इन खवातीन की हिम्मत और हौसला मर्दों जैसा है, जिन्होंने कभी अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं समझा। लाहौर के बादामी बाग के एक ही मोहल्ले की पोलियो से मुतासरा 8 खवातीन में से कुछ अज़्म और हिम्मत की मिसाल हैं। गरीब घरों में पैदा होने वाली इन खवातीन का कहना है कि हम फैमिली पर बोझ बनने की बजाय उनका बोझ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। 20 साला राबिया का कहना है कि वो कपड़े सीख कर हालात के जबर का मुकाबला कर रही है। किराए के घर में रहते हैं, बहुत मुश्किल से घर का गुजारा होता है, घर की बहुत बुरी आदत है। आबदा ने बताया कि इसे पोलियो क्या हुआ, अपनों ने आंखें फेर ली, सहारा देना तो कुजा घर ही से निकाल दिया। वो दर बदर ठोकरे खाने पर मजबूर हो गई। चाहती है कि किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय कुछ करके अपना गुजर औकात कर सके। मेरे बहन भाइयों ने मुझे निकाल दिया, मेरे अम्मी अबू भी नहीं है, भाभियाँ भी मुझसे लड़ती हैं, उन्होंने भी निकाल दिया मुझे। महरीन किराए का घर, बच्चों की पढ़ाई और दीगर अखराजात के लिए दिहाड़ी पर काम करके अपने शोहर का हाथ बटाती है और यूं हिम्मत के साथ जिंदगी की मुश्किलात का सामना कर रही है। हमारा खर्चा बहुत मुश्किल से होता है, हम रेंट पे रहते हैं, बहुत मुश्किल से किराए बिल देते हैं। पोलियो में मुब्तला 21 साला आसिया और 18 साला मलाइका ठीक से बोल भी नहीं पाती। इनकी मजदूरी की वजह से कोई काम नहीं देता और अपना काम शुरू करने के लिए उनके पास कोई रकम नहीं। पोलियो का मर्ज अभी पाकिस्तान में मौजूद है, जिसे खत्म करने के लिए हुकूमत की कोशिशों के साथ साथ वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना होगा। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बर वक्त वैक्सीन लगवाएं। हीरा बदूल, जियो न्यूज़, लाहौर। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। ट्रंप की इस करेंसी से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, मगर उनके मद्दाहों ने धड़ाधड़ ये करेंसी खरीदना शुरू कर दी है, जिसके बाद इस करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 अरब तक पहुंच गई है। ट्रंप ने कहा है कि ये उनकी जानिब से एक ऑफिशियल मीम है। उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि हम अपनी हर कामयाबी का जश्न मनाएं। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ट्रंप इस मंसूबे से कितनी रकम कमा सकते हैं। नामुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हलफबरदारी आज हो रही है। तकरीब में मेहमानों की तवाज़ो सी फूड, गोश्त से बने खानों, आइसक्रीम पर मुश्तमिल मीठे से की जा सकती है। ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीब के ज़हराने में शामिल खानों की तफसील अभी जारी नहीं की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साल 2017 में होने वाली तकरीब में लॉबस्टर झींगों की डिश शामिल थी, जिसमें ज़ाफ़रान की चटनी और मूंगफली के टुकड़े थे। उसके बाद डार्क चॉकलेट और जूस और आलू ग्रेटिन के साथ साथ ग्रिल 7 हिल्स एंगस बीफ कॉमन कोर्स थे और मेन में चेरी वनीला आइसक्रीम के साथ चॉकलेट्स भी मौजूद थी।
और कराची में कारोबारी खवातीन का हौसला बढ़ाने के लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। वर्किंग मेंबर ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन का मुआशी तौर पर बाइख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट। सूट खरीदे, मेकअप और मेहंदी मुफ्त, मोहब्बत और खुलूस से तैयार करदा अशिया। शारा फैसल पर कायम मुकामी मॉल में सजा आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेस्टिवल। 39 कारोबारी खवातीन ने अपना हुनर दिखाया। मैंने ब्रेसलेट बनाई है, ये मैंने बीड्स होते हैं और वायर्स होते हैं और स्पेसर्स होते हैं, उनसे बना के बनाया है। इसकी कीमत 120 है। अप्रिशिएट नहीं होते सही फॉर्म पे, लेकिन मतलब बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरतें भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आप देख लें, खुद सामने एग्जांपल आपके। मैं अबाया सेल कर रही हूँ, अपने डिज़ाइंस के खुद बनाती हूँ। दुबई का फैब्रिक है और मैं अपने बाबा का सपोर्ट करती हूँ इस अबाया में। माएँ अपनी बेटियों को कारोबारी गुर सिखा रही हैं और मशवरा दे रही हैं कि मुआशी खुशहाली के लिए खवातीन आगे बढ़ें। कोई गुलाब के फूलों से तैयार करदा ज्वेलरी फरोख्त कर रहा है तो किसी ने बुर्कों के मुनफरद डिज़ाइन मुतारिफ करवाए हैं। मैं इपॉक्सी का काम करती हूँ, जिसमें हम इस टाइप के ना रियल फ्लावर्स और रियल ज्वेलरी बनाते हैं, फ्लावर को प्रिजर्व करके। मेरी बेटी है, अब ये स्टडी भी कर रही है और साथ में ये देखें ये होम बेकिंग का काम भी कर रही है, तो मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ। मैं इसको ये नहीं कह रही कि नहीं बस अब तुमने शादी करनी है और आगे जाना है, बस घर बसाना है, घर के अंदर बैठ जाना है। फेस्टिवल के मुंतज़मीन ने कहा बासलाहियत खवातीन पाकिस्तान का मस्बत चेहरा है। इसमें ज्वेलरी, रेजिन आर्ट, पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, क्लोथिंग, डिफरेंट स्टॉल्स हैं और लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हर एक के स्टॉल्स पे जा रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कारोबारी खवातीन का हौसला बढ़ाने के लिए उनमें शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन महबूब अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।